कोरोना आएगा, सारी चीज़ें शुरुआत में ही रिवील कर देने से मज़ा नहीं आता। आएगा, कभी गुस्सा आएगा तो कभी बेचारा लगे। All right, I think we should start the video, but let's see where to pin this in. I hope I sound well. Hello everyone, I hope you all are doing well. And the reason why I was not posting videos lately was because I think I'm kind of done milking JNU content, and as much as my friend suggests to create and post more videos of that sort, I feel as if the main reason why I started with this channel, somewhere I kind of do not stay committed to that very reason. Sites with Shida started, I planned on doing kind of a book review series and all of that, but just as before, I must have mentioned that I'm a really descriptive person, so sometimes it's more like a challenge for me to put things into brief lines, and maybe while reading and going through the stories, I feel I go through a lot of emotional trials, because of which I feel as if कि मैं कैसे आपको feel करवा दूँ. I feel as if even in a review मैं कैसे आपको हर चीज़ हर डिटेल बता पाऊँ कि oh my god, you might, or you might experience and go through this emotion, right? So yeah, that's what I do whenever I read a story, listen to a story, see a story. Again, one of my greatest confusion is whether I should speak in Hindi or in English. I'm an Odia, and I've loved Hindi. I love literature in general, hence, language doesn't matter to me. I have read Bengali literature, I have read, of course, Odia literature, Hindi literature, English. As I've told, stories, irrespective of the language barrier, emotions is what we must feel, right? We are going to talk about a book that has made me cry in every chapter, every single chapter. I'm not joking, you guys. So maybe I'll change the camera angle a little bit so that you come closer to me, and maybe when I discuss more about this movie, you feel motivated enough to maybe go and read this book. And also, if you don't even want to read this book, you can listen the audiobook version of it on YouTube. Maybe I'll also link that. Alright, so as you have come closer, I have also got my pillow. गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी ने लिखा है. तो जनरली एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, जब भी आप बुक पढ़े, लास्ट में राइटर या फिर ऑथर के बारे में जाने. और बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में ही रिवील कर देने से मज़ा नहीं आता. सो दैट्स व्हाट आई डू, एंड आई सजेस्ट दैट यू गाइस कैन आल्सो डू दैट. ऑलराइट, टाइटल सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो है जो बुरा है. गुनाहों की बात जब हम करते हैं, फॉल्ट, इट मीन्स फॉल्ट, राइट? तो मैंने जब सोचा गुनाहों का देवता, पहले तो मुझे क्लीशे लगा. क्लीशे इसलिए बिकॉज रील वाले ज़माने में दिमाग ऐसा हो गया है कि पता नहीं, मतलब इट्स लाइक people are using all kind of content, so somewhere, मतलब for some reason I just felt as if क्या है, क्लीशे है. तो मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ कि there's this friend of mine, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी. तो ऐसे ही हम मिलते थे, और कुछ टाइम मैंने उसको देखा कि वो सुन बैठा था. तो मेरा दूसरा दोस्त जो था, उसने बोला कि अरे इनका तो ब्रेकअप चल रहा है. ब्रेकअप? इतना सैड? फिर उसने बोला अरे इनकी सुधा इन्हें छोड़ के चली गई. मैंने बोला सुधा? फिर ऑफकोर्स उसका पर्सनल मैटर था, तो मैं ज़्यादा तो इंटरफेयर नहीं कर सकती. बट फिर कहीं ना कहीं सुधा रह गई थी मेरे दिमाग के पीछे. ऐसे रैंडमली किसी वीकेंड, फ्राइडे उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि क्या हाइप है. मेरे दूसरे दोस्त ने स्टेटस पोस्ट किया था उसी का ही, मतलब गुनाहों का देवता का ड्रामेटिकल वर्जन, ठीक है. तो मैंने वो लिंक ओपन किया, और लिंक ओपन करते साथ साथ मुझे कुछ समझ नहीं आया. वो पहला सीन ही शायद उसके घर में, घर वाला जो सीन है वही है, पर वो ड्रामा भी मैंने कुछ टाइम देखा, अराउंड 10 to 20 minutes, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया.
तो थैंक गॉड कि मुझे एक ऑडियो बुक मिल गया, जिसका लिंक शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप भी जाके सुन। स्टोरी इज सिचुएटेड इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन, उसके डिपार्टमेंट के नाम, उसके आसपास का सेटअप, आपको ऐसे लगेगा कि आप वहीं हैं, इलाहाबाद में ही हैं। कभी आप चंदर बन जाएंगे तो कभी आप सुधा, कभी पम्मी बन जाएंगे तो कभी, अब मैं उसकी छोटी बहन का नाम भूल गई, बट हाँ, बहुत प्यारी थी वो। तो कहानी की शुरुआत तो हमें बहुत ज़्यादा उस जगह के बारे में, इलाहाबाद के बारे में बताती है। बट थ्रू आउट जैसे आप कहानी में चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा अबाउट अ रिलेशन विच इज़ वेरी प्योर। अब आजकल के टाइम पे अगर वो सिचुएटेड होता तो शायद मैं विश्वास भी ना करती, या फिर ऐसे नॉर्मली भी अगर उन्होंने बस बता दिया होता तो शायद मैं विश्वास नहीं करती। बट शायद दो लोगों के बीच में एक इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अफेक्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका बिना नाम लिए हुए आप अफेक्शन को फील कर सकते हो। तो जब आप चंदर और सुधा के कैरेक्टर के बारे में जानोगे, तो शायद धीरे धीरे थ्रू आउट द स्टोरी आप डिस्कवर करोगे कि अनकंडीशनल लव किसको बोलते हैं। आई डोंट नो इफ अनकंडीशनल लव बोलना ठीक होगा या नहीं, बट बहुत ही निर्मल, निश्चल, बहुत ही ऐसा सेल्फलेस सा प्यार था। अब प्यार में भी बहुत टाइप का प्यार होता है ना, तो इसलिए शायद प्यार यूज करना कभी ठीक रहेगा, कभी ठीक नहीं रहेगा। शायद सुधा के नज़रिए से प्यार बोलना ठीक रहेगा, बट चंदर वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। यस, तो यहाँ पे ना सोशल सोशल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो हमारे जो मोरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो एक्चुअली हमने इतना इंटरनलाइज कर दिया है कि जब भी हम अपने मोरल कंपस से दूर जाते हैं, तब हमें लगता है दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम इंटरनलाइज करते हैं ना कोई चीज़ को, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर की आवाज़ है, बट एक्चुअली दिस इज ऑल सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो चंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कैरेक्टर में थ्रू आउट आपको कॉन्फ्लिक्ट फील होगा, बताया, थ्रू आउट। आपको चंदर पे कभी प्यार आएगा, कभी गुस्सा आएगा, तो कभी बेचारा लगेगा। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जैसा हुआ है ना थ्रू आउट द बुक, इट्स अमेजिंग। बट आई थिंक एंड तक वो एक कॉन्फ्लिक्ट में ही रहता है। समवेयर आई फील इनसाइड अस देयर एग्जिस्ट चंदर, बिकॉज बहुत बार हम ऐसे क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमें शायद ये सोचने को नहीं मिलता कि हमें क्या चाहिए। ऑनेस्टली दिस इज हैपेंड टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो आप चंदर और सुधा के प्यार के बारे में पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ना वो उसका भाई था, ना बाप था, ना दोस्त था, ना बॉयफ्रेंड था, पति तो था ही नहीं। तो कैसा टाइप का प्यार था कि वो उसे पूछती थी। तो ये पूजने के ऊपर भी एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। तो उसकी एक छोटी बहन थी, बिनती। बिनती, ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गया। आई वुड हैव गॉन इन गिल्ट अगर मैं आपको वीडियो के एंड तक नहीं याद कर पाती, बिकॉज मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं, बस मन से बात चल रही है। तो बिनती की कहानी भी बहुत अलग है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा उसका कैरेक्टर। और उम्र में हो सकता है सुधा से छोटी है, पर बहुत समझदार है। लास्ट के जितने भी चैप्टर्स है ना, आई थिंक चैप्टर 15 के बाद से या फिर ऐसा कुछ, आपको रोना आएगा। अगर आपने अच्छे से सुना है, यू आर गोइंग टू क्राई, यू आर गोइंग टू फील एवरी बिट ऑफ इट। इवन इफ रोना इज एक्सट्रीम फॉर यू, देन आपका मन नाराज होगा, आपको सबके ऊपर गुस्सा आएगा। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा। एक पॉइंट पे तो आपको इलॉजिकल भी लग सकता है कि इतना कुछ चल रहा था और उसके पापा वाज अनअवेयर ऑफ इट। इतना कुछ चल रहा था बट बाकी सारे लोग कैसे अनअवेयर नहीं थे एंड ऑल। बट समटाइम्स यू विल हैव टू रियलाइज कि कुछ चीज़ें एक्चुअली इतना क्लीन होता है ना कि आपको उस चीज़ पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट कीप्स अस गोइंग इज होप। एंड
love is the ultimate way to raise that kind of hope. But this is a book that I'll like to suggest to you if you're someone who likes plots like coming of age, internal conflict, psychology, human relationships, and to a great extent even social commentary. So प्यार, आध्यात्म, selfless love, sacrifice, a lot of happiness, smiles. If you want to, and of course, crying, being sad, being heartbroken, being extremely heartbroken. If you want to feel all of that emotion, I suggest कि आप प्लीज़ ये बुक सुनिए. मैं लिंक डाउन कर दूँगी और मे बी जब आप ये बुक पढ़ेंगे उसके बाद आके आप कमेंट कर सकते हो और शायद मैं और एक वीडियो बनाऊँ cause this book is really very close to my heart. Alright, see you in my next video and do tell me if you like this format जहाँ पे हम आके actually कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं. ये मेरा थोड़ा काम फेस चल रहा है, इसके बाद थोड़ा फ्यूरियस फेस भी आएगा. So if you guys want to maybe discuss, talk about, or want me to make more videos on different type of content, maybe related to reading, social commentary, or anything that you wish to know more, maybe you can comment down and I'll try my best to make a video. Alright, I hope you all are doing great and bye bye. See you soon.